Hello students, welcome to English grammar class. Our today's topic is transformation of sentences. Before this, we have already learned different kinds of sentences like assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence and objective sentence. So these are the different kinds of sentences. Now, is it possible to convert one form of a sentence into another form of sentence? I mean to say, is it possible to change an affirmative sentence into a negative sentence without changing its meaning? Let's see. For example, read the following sentences. Sentence number 1, he is honest. This is an affirmative sentence because it has not the element not, no or never. Now this affirmative sentence is changed into the negative sentence. We have changed it into the negative sentence, just like he is not dishonest. He is honest. He is not dishonest. This is affirmative sentence, but this is a negative sentence. The form is changed, but you can see the meaning is not changed. He is honest means he is not dishonest. Both have the same meaning. Again, is he not honest? If we change our tone like this, is he not honest? That means yes, he is honest. So this is an interrogative sentence. So we have here three different kinds of sentences. The first one is affirmative sentence, the second one is negative sentence, and the third one is interrogative sentence. So we have here three different kinds of sentences. But the form has been changed, but the meaning is not changed. Meaning is same. All the three sentences carry the same meaning. So all the above sentences express the same meaning, but they have different forms. Then what is the transformation of a sentence? What do you mean by transformation of sentences? What is transformation of a sentence? When we change the form of a sentence. We change the form of a sentence. Here the form has been changed. That is, affirmative is changed into negative and interrogative. The form is changed without changing its meaning. Without changing its meaning. When the meaning is not changed, it is called the transformation of a sentence. This is the definition of transformation of sentences. तो हम लोग अब तक देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किसे कहते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है? फॉर्म सिर्फ बदलता है लेकिन माने नहीं बदलता है. ठीक है, एक सेंटेंस अपने दूसरे फॉर्म में चला जाता है. जैसे यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव में चला गया है और ये इंटरोगेटिव में चला गया है. तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहेंगे. अभी हम जस्ट सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. Now let's see how to change affirmative sentences to negative sentences. Here are some examples worked out. Sentence number 1, he is honest. Now let's see how it is changed. He is not dishonest. Sentence number 2, we must be responsible citizens. Now this is changed to we must not be irresponsible citizens. Sentence 3, taking bribes is an immoral act. Now it is changed like this. Taking bribes is not a moral act. Sentence 4. The agreement signed by us was illegal. Now it is changed like this. The agreement signed by us was not legal. Sentence 5. It is an illegible writing. This is changed to it is not a legible writing. अब इसमें देखिए क्या हुआ है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यहाँ पर ऑनेस्ट है. इस ऑनेस्ट को क्या किया गया है?
इसका ऑपोजिट लिख दिया गया, एंटोनिम। तो ऑनेस्ट का एंटोनिम हुआ डिसऑनेस्ट, मतलब ऑपोजिट। ठीक, अब उससे पहले हम एक नेगेटिव ला देंगे। उसी तरह सेंटेंस में दो में देखिए, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का एंटोनिम होगा इररिस्पॉन्सिबल, और उससे पहले नॉट। उसी तरह से इमोरल, इमोरल का एंटोनिम होगा मोरल, उससे पहले यहां पर हम नॉट बैठा दिए। ठीक है, सेंटेंस 4 में देखिए, ये है इलीगल, इसका एंटोनिम होगा लीगल। ठीक है, और उससे पहले यहां पर हम नॉट लिख दिए। सेंटेंस 5 में देखिए, इलेजिबल, इसका एंटोनिम होगा लेजिबल, और उससे पहले हम नॉट बिठा दिए। तो इसमें तरीका क्या अडॉप्ट किया गया है? तरीका ये अडॉप्ट किया गया है कि जो एडजेक्टिव है उसका एंटोनिम हम लिख देते हैं ऑपोजिट, और उससे पहले एक नॉट लिख दिए। तो दिस इज वन मेथड टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम सेकंड मेथड देखेंगे कि उससे हम किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। Let's see the second method of converting an affirmative sentence into a negative sentence. Here are some examples. Number 1, she is a dancer. अब इसको देखिए कैसे हम चेंज किए हैं। It is not that. शुरू में मैंने क्या लिखा हूं? It is not that. She is not a dancer. But she is a dancer को हम नेगेटिव कर दिया, सिंपल नेगेटिव क्या रहता है? She is a dancer, she is not a dancer, हम इसको लिख लिए। उससे पहले हम लिख दिए इट इज नॉट दैट, तो हो गया इट इज नॉट दैट शी इज नॉट ए डांसर, मतलब दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव हो गया। इट इज नॉट दैट शी इज नॉट ए डांसर। सेंटेंस 2, ही इज ए सिंगर, ही इज ए सिंगर है, इसको पहले यहां पर लिख लिए ही इज नॉट अ सिंगर, उससे पहले लिख लिया इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट ही इज नॉट अ सिंगर। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको हम लोग पहले नेगेटिव कर लिए, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, और इससे पहले लिख दिया इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। 4 नंबर सेंटेंस देखिए, लीव्स आर ग्रीन, तो इसको हम लोग पहले कर दिए लीव्स आर नॉट ग्रीन, और उससे पहले लिख दिया इट इज नॉट दैट, तो हो गया इट इज नॉट दैट लीव्स आर नॉट ग्रीन। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, नियन इज एन इनर्ट एलिमेंट, तो इसको पहले हमने कर दिया इस तरह से कि नियन इज नॉट एन इनर्ट एलिमेंट, और उससे पहले हमने लिख दिया इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट नियन इज नॉट एन इनर्ट एलिमेंट। तो कहने का मतलब है कि इट इज नॉट दैट, इस एक्सप्रेशन के जरिए से या इस सेंटेंस के जरिए से हम सम काइंड ऑफ सेंटेंसेस को जो है हम नेगेटिव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अनदर मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। नाउ if a sentence begins with only, how to change it into a negative form? देखिए, only soldiers protect our motherland, इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं? only is replaced by none but, only की जगह हम लोग लिख देंगे none but, NONE none beauty but। अब बाकी जैसे सेंटेंस वर्ड्स है उसी तरह से लिख देंगे। only soldiers protect our motherland, इसका हो गया none but soldiers protect our motherland। Sentence 2, only a doctor treats patients, only is replaced by none but a doctor treats patients। Sentence number 3, only engineers can build bridges and buildings, only को देखिए हटा दिया गया है none but से, none but engineers can build bridges and buildings। 4 नंबर सेंटेंस देखिए,
You alone help the blind man to cross the road. तो जो मतलब only का होता है वही मतलब alone का भी होता है, सेम मीनिंग है. तो none but you help the blind man to cross the road. तो इस तरह से हम देखा कि किस तरह से ओनली से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो कैसे उसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं. कुछ नहीं है, ओनली की जगह हम नन बट लिख देंगे और बाद बाकी सेंटेंस जिस तरह से उस तरह से हम लिख देंगे. नाउ इफ अ सेंटेंस बिगिंस विथ as soon as, how to remove as soon as and make it a negative sentence. अगर कोई सेंटेंस as soon as शुरू होता है तो उसको किस तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे. देखिए पहले सेंटेंस में as soon as the teacher entered the class. ठीक है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है. ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप इन ऑनर, ये नाउन क्लॉज है. हम लोग ये पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, as soon as it will be replaced by no sooner did और no sooner had. as soon as को हम हटाएंगे no sooner had से या no sooner did से. ठीक है, no sooner had से हटाएंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस, और no sooner did से हटाएंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस. इसको देखिए, no sooner had, as soon as हट गया, इसके जगह आ गया no sooner had the teacher. अब यहाँ पर had अगर यूज करेंगे हम तो यहाँ पर entered ही वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखना पड़ेगा. हम लोग को मालूम है कि हैज हैव हैड रहने से वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. तो no sooner had the teacher entered the class. ठीक है, या अगर हम लिखते हैं no sooner did the teacher, अब enter की जगह हम लोग लिखेंगे enter, यानी did रहने से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, had रहने से वर्ब का थर्ड फॉर्म. याद रखिएगा, no sooner had the teacher entered और no sooner did the teacher enter the class. अब यहां पर देखिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ सेंटेंस जो है ये यहां पर खत्म हो गया. अब यहां से मेन क्लॉज शुरू हो रहा है. ठीक है, तो मेन क्लॉज के शुरू होने से पहले हम यहां पर देन का इस्तेमाल करेंगे. THAN, then. Usually students make mistake. They write then instead of than. स्टूडेंट्स जो है then के जगह then लिख देते हैं, तो ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है. ऑलवेज रिमेंबर इट, then लिखना है, then नहीं लिखना है. ठीक है, तो हो गया no sooner had और no sooner did. No sooner had the teacher entered the class than all students stood up in honor. सेंटेंस 2 नंबर देखिए, as soon as he reached the station, the train went in. ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हो गया. ये हो गया आपका मेन क्लॉज. तो यहां पर चेंज हो गया no sooner had. अब यहां पर हम no sooner had से इसको चेंज किए हैं, तो हो गया no sooner had he reached the station. reached. अब यहां पर ये एडवर्ब क्लॉज खत्म हो गया. अब यहां से मेन क्लॉज शुरू हो रहा है, तो मेन क्लॉज के शुरू होने से पहले हम लोग then लिखेंगे. THAN, then the train went in. देखिए, as soon as the electrician touched the wire, he was shocked. तो as soon as की जगह हमने लिखा है no sooner did. No sooner did the electrician touch. अब यहां पर टच हो गया, did है इसे यहां पर टच हो गया. touch the wire, then he was shocked. तो वायर ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. यहां तो हो गया एडवर्ब क्लॉज लिख दिए. no sooner did the electrician touch the wire, एडवर्ब क्लॉज. और he was shocked ये मेन क्लॉज है, तो उससे पहले हम लिख देंगे एक कंजंक्शन then. तो हो गया then he was shocked. तो इस तरह से जब भी सेंटेंस में as soon as रहेगा
तो उसको हम लोग नो सूनर डिड या नो सूनर हैड से उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और मेन क्लॉज शुरू होने से लिखने से पहले हम लोग देन का यूज करेंगे। मतलब हमारा एज सून एज में सिर्फ दो जगह चेंजेस हो रहा है, एक नो सूनर हैड और यहाँ पर देन। तो ये था एज सून ए सेंटेंस बिगिनिंग विथ एज सून एज, हाउ टू रिमूव सॉरी हाउ टू कन्वर्ट an affirmative sentence beginning with as soon as into negative sentence। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। Now we have here another set of sentences that contains to। अब यहां पर दूसरे कैटेगरीज का सेंटेंसेस है। इसमें देखिए TWO लिखा हुआ है, तो हमको टू रिमूव करना है। एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन में कभी कभी सवाल इस तरह से पूछा जाता है, रिमूव टू और चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यहां दिया हुआ है द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। यहां पर एक टू यहां पर है TWO और एक टू यहां पर है, ठीक है। ये TWO एडवर्ब है और ये इंफिनिटिव है। इस टू का क्या मतलब होता है? द ओल्ड मैन इज टू वीक। टू मीन्स मोर देन इनफ, मोर देन वांटेड, एक्सेस, सरप्लस, बहुत ज्यादा, ठीक है। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। एक मीनिंग तो ये हुआ। और दूसरा चीज है कि TWO to indicates incapacity of a subject, ठीक है, impossibility for a subject। टू का मतलब होता है कि टू यहां जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए एक इनकैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है, या यहां जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए किसी काम को करने के लिए इम्पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है। ये हुआ टू का मीनिंग। और मीनिंग हुआ मोर देन इनफ। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। मतलब क्या हुआ कि द ओल्ड मैन इज सो वीक, द ओल्ड मैन इज वीक, द ओल्ड मैन इज सो वीक, दैट इज नॉट वांटेड, ओके, दैट इज नॉट वांटेड। द ओल्ड मैन इज सो वीक that he can't walk, ठीक है। तो वीक, ओल्ड मैन इज वीक, ठीक है। तो इसका वीकनेस ओल्ड मैन के लिए जो है ऐसा इनकैपेसिटी है एक, जिसकी वजह से ही कांट वॉक, ठीक है। ये आप देखिए चेंज कैसे हुआ है। देखिए द ओल्ड मैन इज, ठीक है। ये टू की जगह हम लोग लिखे हैं सो, टू इज रिप्लेस्ड बाई सो, ठीक है, वीक। अब उसके बाद हम दैट लिखे हैं। इस टू को हटाने के हम लोग यहां पर लिखे हैं सो वीक दैट, फिर यहां पर इतना आ गया ही कैंट वॉक। यहां पर जो वर्ब है उसी तरह से है, और यहां पर एक आ गया है दैट ही कैंट वॉक, ये ऐड हो गया है दैट ही कैंट। तो पूरे सेंटेंस को देख लीजिए, द ओल्ड मैन इज टू वीक, The old man is so, इसके जगह पर हो गया so weak। अब यहां पर इतना आ गया that he can't, ठीक है। और ये टू को हम लोग रिमूव कर दिए, यहां पर दोनों ही टू जो है रिमूव हो गया है। अब कैन यू रिमेंबर विच क्लॉज इज इट? द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही can't walk। It is the adverb clause of consequence, it is the adverb clause of consequence। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। ये है सिंपल सेंटेंस, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैंट वॉक। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही रैन टू स्लोली कैच द ट्रेन। ठीक उसी तरह से यहां पर हम लोग लिखे हैं कि ही रैन, टू की जगह पर हो गया सो स्लोली, उसी तरफ से हो गया। अब यहां पर देखिए टू के बाद या तो एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा। देखिए वीक एडजेक्टिव है और स्लोली क्या है, एडवर्ब है।
ऑलवेज रिमेंबर कि इस तरह के सेंटेंस में TOO के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। ही रैन सो स्लोली, फिर उसी तरह से दैट ही कुड नॉट। अब यहां पर कुड नॉट का इस्तेमाल इसलिए हुआ है, ये पास्ट टेंस में है। रैन यहां पर इस था इसलिए यहां पर कैंट, यहां पर पास्ट टेंस में है इसलिए यहां पर कुडंट हो गया। ठीक है, जैसे यहां पर कैंट था तो ही रैन, इसके जगह पर हो गया सो स्लोली, ये टू हट गया, इसको हम लोग हटा दिए, इसके जगह पर आ गया दैट ही कुडंट कैच द ट्रेन। कैच द ट्रेन उसी तरह से हो गया। ठीक है, मतलब ही रैन सो स्लोली दैट। अब यहां पर एक जो है क्लॉज शुरू हो रहा है, इसलिए क्लॉज से पहले यहां पर हम एक सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट कौन सा है, यहां पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 3, द चाइल्ड इज टू स्मॉल फॉर ए ट्री। अब यहां पर ये थोड़ा सा इसका इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर सेंटेंसेस। आगे जो सेंटेंसेस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर। अब यहां पर ये दूसरा वाला टू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है द चाइल्ड इज टू स्मॉल फॉर ए ट्री। अब इसको यहां पर हमको खुद से माने को गेस करने होगा कि व्हाट मीनिंग इज बीइंग डिराइव्ड या कुड बी डिराइव्ड, कौन सा माने इसमें निकल सकता है। द चाइल्ड इज टू स्मॉल फॉर ए ट्री, माने एक ट्री है तो हम बोल रहे हैं कि द चाइल्ड इज टू स्मॉल फॉर ए ट्री। मीनिंग ये निकल रहा है कि बच्चा इतना छोटा है या बच्चा इस दरख्त के लिए छोटा है, पर चढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो हो गया द चाइल्ड इज टू की जगह पर फिर सो, द चाइल्ड इज सो स्मॉल दैट ही कांट क्लाइंब अ ट्री। ही कांट क्लाइंब अ ट्री, यहां पर अपने से माने जो है खुद से ड्राइव करने होगा कि टू स्मॉल फॉर ए ट्री, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मतलब ये निकला कि बच्चा जो है दरख्त पर चढ़ नहीं सकता है। तो हो गया द चाइल्ड इज सो स्मॉल दैट ही कांट क्लाइंब अ ट्री। 4 नंबर से देखिए, द वुंड एक्स टू मच फॉर मी। वुंड मतलब हुआ जख्म, जख्म बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। एक्स टू मच द वुंड गिव्स मी मच पेन, द वुंड गिव्स मी मच पेन। ठीक है, द वुंड एक्स सो मच, द वुंड एक्स टू मच फॉर मी। तो देखिए द वुंड एक्स, ठीक है, इस टू की जगह पर हो गया सो मच। अब यहां पर क्या मीनिंग निकलेगा कि जख्म बहुत ज्यादा जो है दर्द कर रहा है, तो क्या होगा दैट आई कांट बियर इट, दैट आई कांट बियर इट। वही हो गया यहां पर देखिए द वुंड एक्स सो मच दैट आई कांट बियर इट। याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसिक्वेंस में ये डाला है। ठीक है, 5 नंबर सेंटेंस देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये आगे ही की तरह है, तो हो गया इसका द न्यूज इज, टू की जगह हो गया सो गुड एडजेक्टिव दैट इट कांट बी ट्रू। बी ट्रू उसी तरह से हो गया, ये टू हो गया इस तरह से, यहां पर रिमूव हो गया दैट इट कांट बी ट्रू। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस जिसमें टू का इस्तेमाल हुआ है और उसको हमको नेगेटिव करना है। तो इस सिंपल सेंटेंस को हमने चेंज किया है एक तरह से, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसिक्वेंस को इस्तेमाल करके, और इस तरह से वो हम इसको नेगेटिव भी कर दिए हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी यहां पर टू रहे, एक टू यहां रहेगा, एक टू यहां रहेगा, पहले टू की जगह पर हम लोग लिखेंगे सो, उसके बाद जो एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा उसी तरह से लिख देंगे, और इस टू को हटाएंगे हम लोग दैट ही कांट, जो भी सब्जेक्ट दिया रहेगा वहां पर लिख देंगे। प्रेजेंट रहने से कैंट लिखेंगे, यहां पर अगर पास्ट टेंस रहेगा तो यहां पर कुडंट लिखेंगे। ठीक है, तो दैट ही कांट, और यहां जो वर्ब रहेगा उस तरह से वर्ब हो जाएगा। तो ये था माने हाउ टू रिमूव अ सेंटेंस, हाउ टू रिमूव टू इन अ सेंटेंस। तो हम आज अपने क्लास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो है चेंज किए इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स के जरिए से। हम समझते हैं कि आप लोगों को ये मेरा आज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अफर्मेटिव टू नेगेटिव समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।